So welcome to the Uncommon Talks by Pushkar and Johnny. आज के जो हमारे गेस्ट हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी वो अक्षांश है। तो अक्षांश का बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसने अपनी ग्रेजुएशन करी है बीजेएमसी में, ठीक है। और इसको हमेशा से फिटनेस का काफ़ी शौक रहा है, बट उस फिटनेस से पहले एक उसकी जर्नी और स्टोरी रही है जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन थी जिसमें। तो उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आना कि फिटनेस ट्रेनर और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाए, तो उसकी जर्नी आज डिस्कस करेंगे। और अक्षांश अपने बारे में कुछ बताएगा, बस इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत कुछ भी। तो बेसिकली मैंने अपना स्कूलिंग रायन बॉन्ची से करा है, जिसमें मैंने कॉमर्स विद मैथ्स सब्जेक्ट लिया हुआ था। पोस्ट उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन एमआईटी नोएडा से किया हुआ है, जहाँ पे आई हैव डन बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और डायरेक्टली heading from college to from my job days, I worked for a media firm and I worked as a sales executive over there. And when I left it, I was a project manager over there. And then I had this calling that I want to follow my passion, and passion being fitness for over you can say a kind of a decade. And I felt ki I should give it a shot. Matlab, post when I'm somewhere near my 40 or 30s, I don't want to regret ki maybe if I would have given a shot to fitness, life would have been different. So just to overcome that regret, I chose my path of passion and I'm working on it. So it's been going good. Okay, so first question कि ये जो switch था from job, एक सेफ सिक्योर जॉब जो तुम्हें लाइक मंथली पे दे रहा है अच्छा खासा, तुम एंजॉय भी कर रहे हो अपनी जॉब को, तुम्हें मज़ा भी आता है, ठीक है। क्या चीज़ थी वो जो ट्रिगर करा जिसके लिए तुम्हें यहाँ स्विच करने का मूड बना? I mean, इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर टू what I gave in my introduction also is कि it was all about that regret thing, कि वो चीज़ बार बार इतनी पिक करती थी आपको कि every time I used to go to my job, I used to feel complete कि job is good, everything that I like I'm doing in that job is paying me decent amount of salary, but still there was this satisfaction जो आपको अपने काम को करके आता है, which was not there. And I used to feel that कि it's only possible if I follow my passion and I'm going to work hard on it. Only then it is possible. And to be honest, I don't really care कि if I'm going to be a successful fitness coach or not, but at the end of the day I feel happy. I mean, that feeling cannot be told, but yeah, that feeling is amazing, and it can be only expressed when you yourself apply your passion on yourself and go ahead with it. First of all, let's start कि तुम्हारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, उससे तुम्हारा पहले बैकग्राउंड क्या था, तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आए, वो जो जर्नी है जो मुझे पता है और कई सारे लोगों को जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है, बट जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करो। आई थिंक जर्नी के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव टू गो समवेयर जब हमारी 6-7 टाइम ऑफ स्कूलिंग चल रही थी, 2008 समवेयर, यस 2008-2007 के टाइम पे जाना पड़ेगा। एंड दैट हैज़ बीन अ टाइम आई रियली फील कि थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट बट दे वंट, एंड आई फील कि आई कुड हैव डन बेटर, बट it's okay. Sometimes just you have to accept life how it is, and you have to make the best out of it, because not everything in your life will go according to you. You have to accept it ki this is life, there will be ups and downs, and you just have to accept it. There's no going back in the past and switching it again and doing something different. No, it's all about that what you have in your future and what you're doing your best in your present right now. So it's about time we were in 2007-2008. I think most probably maybe 7th or 8th class was going on, and I've never been very good in studies, and I was neither very good in sports or anything. So I used to always feel that there must be something that I must be good at, right? But what actually used to happen was, because of neither being good at studies nor at sports, never getting any compliments, never getting any praises for anything, तो उसका रिपोर्कशन ये होता था कि हर जगह से हमेशा गालियाँ पड़ती थी, एंड हर जगह से हमेशा मार पड़ती थी, हर कोई ताना मारता था, हर कोई सिर्फ नेगेटिव चीज़ बोलता था। नो वन यूज्ड टू लाइक डिमीन हो रहे हो, बेसिकली इन्फीरियर फील करा रहे हैं सब लोग, या खुद भी हो रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब समटाइम्स क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्सन
cannot be good at anything, but still that person is a person. You need to treat him just like a normal person sometimes. Right. You know, you don't have to compliment that person every time, but every once in a while it's good. Treat them normally. Yeah, treat them normally, it's good. बट वो भी नहीं होता था, तो क्या होता है एक ऐसे सिचुएशन में जब आप चलते चले जाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समवेयर आपकी पर्सनालिटी बहुत डल हो जाती है. आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं. यू फील कि यार मे बी मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मतलब आई फील कि यार मे बी ना मेरे से ही नहीं हो पाएगा. बट डू यू थिंक कि उस चीज़ में एक फैक्टर ये भी है कि तुम्हारी कंपनी कैसी है? बिकॉज समटाइम्स यू आर जस्ट अ नॉर्मल गाय, बट तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं. This is a very important point. This is a very important point. But at this moment, ना, when you feel कि हर कोई गाली दे रहा है, तो at this moment ना, you just want acceptance. You don't even care about कि तुम्हारे क्या ग्रुप है, which kind of people you want. So कहीं से भी आ रहा है, बस acceptance चाहिए. You just want acceptance, भाई, कि just include me. No matter you wanna degrade me, you wanna say bad things about me, but just accept me, because every one of us, we want some or the other kind of attention. वो चाहे किसी से भी, it can be your peers, it can be your friends, it can be your family, but जब आपको कहीं से भी ना मिले ना, तो all you desire is for attention, and जहाँ से मिलेगी ना, you will just grab it, irrespective कि आपको उस attention के लिए 10 गलत बात भी बोल रहे हैं. Right. तो आई यूज टू ऑलवेज लुक आउट फॉर कि यार कोई तो अटेंशन दे, कोई जस्ट बिकम गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. एंड एक काइंड ऑफ रूटीन बन गया था पोस्ट टिल माई 8th क्लास टू, यू कैन से समवेयर टू माई एंड ऑफ 9th, कि मतलब स्कूल में जाना, स्कूल में बुली होना, उल्टी बातें सुनना, टीचर्स की गालियाँ खाना, एंड टीचर्स कंप्लेनिंग कि यू नो यू नॉट गुड एट स्टडीज, यू नॉट गुड एट एनीथिंग, हाउ विल यू लुक एट योर फ्यूचर. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब फॉर अ किड to something to say like this to a kid who's in 8th, it's not a right thing to say, because a lot of people say ki, you know, you need to look at your future, but that's not a very big thing. It's okay, at whatever age you are, you can look at your future. Exactly, it's never too late. It's never too late. And but as a kid तो mentality वही. Exactly, it's all about, you know, enjoying, having life, and a kid doesn't actually look at the future. Exactly. उसके लिए it's all about ki what's going in the present. Present or next day. Exactly. Max. Next day max. So एक रूटीन सा बन गया था कि कॉलेज में भी उल्टा सीधा होना. फिर when I used to come back from my school and फिर मॉम घर पे पेरेंट्स के साथ बात करना. पेरेंट्स भी you know upset रहेंगे क्योंकि you know obvious thing, you're not performing at studies, you're not good at any sports, you're not getting any certificates or medals, you know, so this must be something that they should be happy about. जब वो भी नहीं है तो they are also saying something upsetting to you, they're also saying something negative to you. And sometimes they even hit you, so that thinking you might do better for yourself, and then going ahead in the park, having no friends of much, you know, people not allowing you to play with them, and agar khila bhi rahe hain to they bullying you just to have some fun. So it kind of became a routine. And somewhere down the line, when I came to 9th, and somewhere in mid 9th, when my midterms got over, my parents thought कि you know we should send him to some tuition classes, maybe somewhere इसकी जो पढ़ाई है वो improve हो जाएगी. So I started going to tuitions. I won't name it, but yeah, I started going to tuition, which was kind of a hi-fi tuition for me at that time. And I met a lot of people over there at my tuition classes, and was somewhere in DLF doing well. And that's where the whole thing actually started, and a very big major shift in my life came. I somewhere started getting into smoking, drug use and drinking and stuff. I know it's a very young age, but that was the kind of influence that I had on myself from the people around me, because that was the first time I actually got acceptance. That was the way for me to get any kind of acceptance. Matlab, how would I tell you that, you know, for the very first time people would used to ask me कि you know तू चलेगा सिगरेट पीने या तू चलेगा दारू पीने. तो आई वाज लाइक कि यार कोई नहीं पूछ रहा था, ये तो पूछ रहे हैं, तो चलो कंपनी को एक्सेप्ट करने के लिए. एग्जैक्टली, कितना ही डार्क और कितना ही बैड वे हो इन्फ्लुएंस का, या फिर कोई मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए फिलहाल. कहीं से भी आएगी, यू विल ग्रैब इट. तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, व्हाई नॉट, ये वो. एंड स्लोली इट स्टार्टेड बिकमिंग अ काइंड ऑफ रूटीन फॉर मी कि अगर सुबह उठा हूँ तो सिगरेट चाहिए, दिन में चल रहा हूँ तो वी नीड ड्रिंक्स. एंड अगर एक दिन भी स्मोक अप नहीं कर पाया हूँ या स्मोक नहीं कर पाया हूँ तो आई काइंड ऑफ बिकम इरिटेटेड, you know, बहुत frustrated सा. And one thing led to another, मतलब, you know, smoking led to me, you know, stealing money from my house, and so that I could buy more cigarettes, because at that time parents hardly give you money.
एंड आपको अपनी क्रेविंग्स तो मीट करनी है. एंड उस टाइम पे आई डेंट रियलाइज कि एक्चुअली जो मेरे दोस्त हैं वो भी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ फॉर उस टेम्परेरी टाइम बीइंग जस्ट मेरे साथ हैं, जिससे वो फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अगर हम सिगरेट्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आई यूज्ड टू बी द वन हु यूज्ड टू पे, एंड दे यूज्ड टू जस्ट come along and have the cigarettes along with me. And this I think went on for I guess most over an year. And you know over the time मेरे को अपने अंदर वो changes दिखने शुरू हो गए कि you know skin बहुत pale पड़नी शुरू हो गई, eyes के नीचे dark circles पड़ने शुरू हो गए हैं, लोगों ने taunt करना शुरू कर दिया on the way जब हम चल रहे हैं, ऐसे walk कर रहे हैं कि आपको क्या हो गया, you're not eating well, और आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप सो नहीं रहे ढंग से. इवन स्कूल में, हर जगह, स्कूल में भी, मतलब स्कूल में भी, मेरे सोसाइटी में भी, हर कोई टोकने लग गया. नॉट ओनली मी बट माई पेरेंट्स एज वेल कि आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बट मैं अपनी धुन में था कि यू नो अब फाइनली मेरे पास एक सर्कल है जिसके साथ मैं बैठ के चिल करता हूँ, मेरे को एक अपनी हवा लगी हुई थी. तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, लेट्स कंटिन्यू दिस जब तक चल रहा है वो. बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली मोमेंट वाज दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आई एवरी डे ऑफ माई लाइफ ना, आई गेस 4-5 months जब मेरे को करते हुए हो गया था स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह, आई यूज्ड टू एवरी डे रिग्रेट कि व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज आई एम स्टीलिंग मनी फ्रॉम होम, आई एम स्मोकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम बेरली इवन 16, आई मीन मेरी टीनेज चल रही है, एंड आई एम जस्ट अ किड, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ. और बाकी लोगों को तुम देख रहे होगे काफ़ी एग्जैक्टली लाइफस्टाइल जैसा उनका चल रहा है, हाँ, स्पोर्ट्स है, हेल्दी है, स्कॉलर है, कुछ भी है, एनीवे. एंड एक चीज़ होती है जो इस टाइम पे ना आपको जो कॉन्फिडेंस डाउन करती है ना, वो ये है कि आपको हर चीज़ चोरी छुपे करना है. फॉर एनीथिंग यू कांट बी कॉन्फिडेंट, यू कांट बी ऑनेस्ट, यू कांट टेल कि हाँ भाई मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ, कि हाँ कम आउट इन ओपन से कि मतलब यार ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और वो लोग भी उसको मान जाए और एक्सेप्ट कर लें कि हाँ एग्जैक्टली. और अगर आप क्या होता है एक पैटर्न बना लेते हो ना हर चीज़ के लिए झूठ बोलने के लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट समवेयर डाउन द लाइन आपकी पर्सनैलिटी बहुत डल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है ही नहीं. और आपकी पर्सनालिटी ब्राइट अप ही तब होगी जब आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होगा, चीज़ों में एक ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई इसने बोला तो इस चीज़ की गारंटी है. बट आप हर चीज़ के लिए झूठ बोलते चले जा रहे हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी को इतना डल कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बट पीपल कैन सी इट ऑन योर फेस. सो हर चीज़ के लिए झूठ बोलना एंड ये करना है, एंड आई यूज्ड टू रिग्रेट इट एवरी डे. बट नॉट एग्जैक्टली आई कैन टेल यू विच डे व्हाट इज कि कौन सा था, बट ओवर अ ईयर देन आई रियलाइज कि यार जो चल रहा है ना बहुत गड़बड़ है, दिस इज वेरी यू नो फक्ड अप, एंड आई डोंट वांट टू गो दैट साइड. तो आई जस्ट टुक अ ओथ टू माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक कि आई मीन इट्स नॉट इवन गोना बी अ स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस, आज से ही बंद, well there is no even touching it, no going back, आज से it's all shut. I'm not going to meet those people, I'm not going to use any kind of substances, I'm not going to use any kind of drug that's going to give me high, nothing. बिकॉज यूजली क्या होता है जो स्लो प्रोसेस होता है, या फिर लोग डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि नहीं यार कल से करेंगे, नेक्स्ट वीक के बाद पक्का बंद. वो नेक्स्ट वीक कभी आता ही नहीं है. एग्जैक्टली या तो आज होता है या फिर कभी नहीं होता. एग्जैक्टली. आई मीन अगर वो करता भी होगा लोगों के लिए वर्क, तो आई डोंट नो, बट फॉर मी इट ओनली वर्कड इन अ वन वे कि आज और अभी. देयर इज नो कि कल कर लूंगा, या फिर आज मैं इफ आई एम स्मोकिंग 10 cigarettes, कल से आई विल स्टार्ट स्मोकिंग 6. तो वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला एरिया, ग्रे एरिया था ही नहीं उसमें. देयर वाज नो ग्रे एरिया, देयर वाज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था वेयर आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ कि भाई व्हाई एम आई इवन देयर, मतलब क्या कर रहा हूँ. ठीक है, आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, आई वॉज नॉट गुड एट एनीथिंग, बट आई वॉज नॉट इवन अ बैड किड, एंड आई एम टर्निंग इनटू वन, दैट्स जस्ट वन फैक्टर लेफ्ट इन मी, और वो भी मैं उसको बर्बाद करने लग रहा हूँ कि आई वॉज अ गुड पर्सन, और वो भी चीज़ मैं बिल्कुल बर्बाद करने लग रहा हूँ. तो वो चीज़ समवेयर मेरी माइंड में इतनी हिट करी कि इट टोल्ड मी कि स्टॉप इट, बहुत गलत एरिया में जा रहा है, स्टॉप इट. एंड आई जस्ट स्टॉप्ड इट इन समवेयर इन माई 10th की आई थिंक मिड टर्म स्टार्ट होने वाले होंगे, एंड आई स्टॉप्ड इट कम्प्लीटली. एंड वेरी ऑनेस्टली इट वॉज अ वेरी टफ थिंग फॉर मी टू डू. आई मीन आई हैव सीन माई सेल्फ कि जब वो चीज़ मैंने बंद की थी, तो उस चीज़ का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया था ओवर द पास्ट ईयर कि जब मैंने उसको छोड़ा, तो आई हैव टू एक्चुअली गो थ्रू दोज नाइट्स जहाँ पे आई यूज्ड टू गेट. So I used to go through those nights where I used to actually, have those bad dreams, and I used to have sweaty nights where I used to sweat a lot,
and all of a sudden I used to wake up and this I knew this was all repercussion of me smoking this much. बॉडी क्रेव कर रही थी बेसिकली, वो डिमांड कर रही हो, तुम उसे दे नहीं रहे हो. Exactly. And मतलब अब मेरी मॉम भी मेरे को बताती है कि there is only one thing that was with me forever, और ये हमेशा से रहा है मेरे में, that my will is very strong. And even I have realized now, पहले मुझे ये बात अपने में नहीं पता था, but they have always told me कि we know this about you, कि तेरी will बहुत strong है. तेरे माइंड में आ गई ना वो बात फिक्सेट कर गई तो तू कर देगा. It doesn't care कि तेरे साथ कोई खड़ा है नहीं खड़ा, अकेले भी ना तू कर जाएगा वो चीज़. तो I stopped consuming any kind of substance or anything. I worked on that thing. I used to go back to sleep every night thinking कि अब मेरे को normal नींद आएगी and but it wasn't there. It took me around 2-3 months to get back to normal sleeps from having any kind of panic attacks or any kind of bad dreams or any kind of having all of us sweating again and in the middle of the night. Those all repercussions of me going into the substance use and everything. Then switch क्या है? And then switch ये आया था कि when I looked around strongly around myself now, I realized कि not even a single person is there who's gonna help me out and pull me out of this. I realized कि भाई इसमें ना अब तू खुद ही है, जो करना है तू नहीं करना है, खुद गया था खुद बाहर आएगा, खुद ही बाहर आना है. तो I switched my company completely. I went from being chilling with people who used to smoke and वगैरह to completely cutting them off and going into an area where it was completely different from the lifestyle that I used to live. I went into completely fitness side. I used to work out all by myself, thinking कि one day it's gonna pay off. है ना, एंड मैं हर दिन जाता था वर्कआउट वगैरह करता था. आई कुड सी माई फ्रेंड्स प्लेइंग वगैरह वगैरह एंड आई यूज्ड टू फील बैड कि आई एम जस्ट अ किड, आई कैन गो एंड प्ले विद देम. बट आई वाज सो डिटरमिन्ड, आई डोंट नो विच वे दिस डिटर्मिनेशन केम फ्रॉम, बट आई सो डिटरमिन्ड कि अब कुछ मिलेंगे, खेलेंगे, कुछ करेंगे, किसी से बात तो उन्हीं से करेंगे जिसको वैल्यू है, वरना ठीक है भाई अकेले ही बढ़िया है. सब एक कर दिया था सब. देन इट वाज ओनली अबाउट माय पेरेंट्स हैं, घर आना स्कूल से, फिर अपना वर्कआउट करने जाना, घर आना, खाना पीना करना, पेरेंट्स से थोड़ी बात करना था. हाँ, एंड आई वाज लाइक कि यार अब उन्हीं के साथ चिल करेंगे हु कैन एक्चुअली वैल्यू मी. मतलब उनकी कोई कंपनी की जरूरत नहीं है जो जबरदस्ती बैठे हुए हैं. तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एवरी डे. आई यूज्ड टू वर्क आउट इन अ पार्क जहाँ पे barely even we get light and stuff. कोई you have आपके पास सामान है, machines है, नहीं. It was just plain park. I used to work out every day and कुछ नहीं, just push-ups, pull-ups, basic squats. हाँ, calisthenics and जो bare minimum knowledge I had. And trust me, that was also very tough because it's like telling a kid कि if everyone is having fun, तू जाके पढ़. It's like that कि मतलब आप सारे बच्चों को बोलोगे खेलो और आप जाके पढ़ो. तो आपके अंदर ना इतनी आप स्टेज में इतने किडिश होते हो, इतने नाइव होते हो कि आप वो चीज़ इतनी समझ नहीं सकते कि उसकी वैल्यू क्या है. तो आप हमेशा उस चीज़ से बहुत डिसहार्टन होते हो कि यार मैं इनके साथ क्यों नहीं हूँ, है ना. तो ये तो आई गेस हमारी जो प्रैक्टिस होती है स्पोर्ट्स में, जब तुम बास्केटबॉल में थे, मैं फुटबॉल में था, तो ये तब भी था कि क्लास में सब एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, हम सुबह जा रहे हैं 5:30 बजे 5:30 इन द मॉर्निंग, और हम 8-9 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं धूप में और घिस रहे हैं अपने आप को इधर से उधर. टीम में होना इज़ फन, फुटबॉल खेलना इज़ मोर फन, वो एक बिलोंगिंगनेस आती है उससे. एग्जैक्टली. बट उतना ही इसमें रगड़ना भी होता है अपने. एग्जैक्टली. उतना ही पुश करना है बॉडी को, उतना ही झेलना भी है सब कुछ. एंड काइंड ऑफ पता है एज जस्ट लाइक यू टॉकिंग, हम एक तरीके से उस चीज़ को ना पसंद भी करने लगते. एग्जैक्टली, वो पसंद आती है कि उससे डिफरेंस आता है ना. हाँ, एंड वो लाइफस्टाइल ना मजेदार लगने लगती है. एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं लगता कि यार बस लगे हुए हैं, है ना, जबरदस्ती है. नहीं, वी काइंड ऑफ एंजॉय इट विद टाइम. कूल फील होता है. हाँ, एथलीट होना इज वेरी कूल. एग्जैक्टली. स्कूल टाइम हो चाहे कॉलेज टाइम हो चाहे कोई सा भी टाइम पीरियड हो लाइफ का, Exactly. तुम फिट रहते हो, तुम अच्छा फील करते हो, डोपामिन रिलीज होता है. एग्जैक्टली. तो डोपामिन रिलीज होता है खेलने से या कुछ भी एक्सरसाइज करने से. एग्जैक्टली. फील गुड तो हमेशा ही रहता है. एग्जैक्टली. प्लस तुम्हारा जो एक ब्रदरहुड बनता है यस. स्पोर्ट्स खेलने से, Yes. और तुम्हारी सर्कल इंक्रीज होती है और बढ़ती है, इनर से आउटर पे जाते हो, जो इतने लोगों से, नए नए टाइप के लोगों से मिलते हो, जो नेटवर्किंग भी होती है इन एनी वे, जो बॉन्ड तब बनता है और वो अब तक रहता है. Exactly. So I started working out. I started working out in the park all by myself. जो थोड़ा बहुत I had knowledge, I used to do that, है ना. But I was like कि consistent रहना है. It was, for me it was never about कि आज ही सब कुछ कर देना है ना, या फिर एक महीने में ही बदल जाना है. I was like कि टाइम लगेगा ना, लगाएंगे. Exactly.
जितना लगेगा, चलो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना टाइम लगेगा ना लगाएंगे। फॉर मी इट वॉज नेवर अबाउट कि 1 साल का गोल है मेरा। नहीं, ये चीज़ मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ तेरी, कि मतलब तूने उस एज में भी सोच लिया कि ये नहीं कि 1 या 2 महीने 3 महीने में मैं बॉडी बना के एब्स निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम्हें पता था कि टाइम लगेगा और टाइम दे भी सकता हूँ। एग्जैक्टली जो नॉलेज अभी, अवेयरनेस क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस जो लोगों में अभी तक नहीं है, जो कहते हैं कि हम जिम जाएंगे, प्रोटीन ले लेंगे, 4 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी। एग्जैक्टली तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट हर दिन। काफ़ी टाइम फेलियर्स भी होते थे, काफ़ी टाइम इंजरीज भी होती थी, क्योंकि नॉलेज नहीं है। आप जिस चीज़ के बारे काम करना शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में यू सी डाउन्स इन दैट, यू सी फेलियर्स इन दैट। वो सब थे, इंजरीज होती थी, बहुत बारी ऐसी भी इंजरीज होती थी जिसमें हफ्ते निकल जाते थे रिकवर होने में, बट करना है भाई, जब रिकवर कर गया फिर आ जाओ। तो वो सब किया। साइड बाय साइड आई यूज्ड टू रीड अबाउट दिस थिंग, about whatever exercise that I'm doing, or what kind of nutrition I should eat in, and all by myself. Like no one was pushing me actually to do that. और the only book you have ever read, सबसे मोटी बुक, हाँ, क्योंकि कुछ तुमने आज तक नॉवल नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, and I'm not कौन सी थी? novel buff or a guy who reads book on a daily basis, but if there's something related to fitness, then I'm a guy who's gonna end it up in a day. कौन सी थी और वो बुक? And that book was, I guess, the whole encyclopedia by Arnold Schwarzenegger about bodybuilding. I think it's more than 1,000 pages book, and I finished it in 3-4 days. Why? Because it was all about my passion. It was all about my interest. So, and one thing kept on going, other thing kept on leading to it. Slowly and steadily, मेरे अंदर I could see those changes. Over a year and a period of half, I could see that change in myself कि हाँ यार body transform हो रही है, स्किन की टोन में फ़र्क आ रहा है, यू नो आपकी स्किन क्वालिटी भी एक चीज़ होती है, उसमें बहुत फ़र्क आ रहा है, बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो रहे हैं तुम्हारे। एग्जैक्टली मेरे को अपने आप को परसीव करने का तरीका बहुत बदल रहा है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड हो रहा है, मेरी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट ऐड हो रहा है, एंड नो वन इज टीचिंग यू, एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग इट टू कि ये तुझे करना है। ये तो नेचुरल टेंडेंसी, दिस इज नेचुरल थिंग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ ना, दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली जॉइन यू। नो वन विल एक्चुअली कम एंड टेल यू कि भाई अब से सेल्फ रिस्पेक्ट ऐड करनी है, नहीं। These things will automatically start coming to you when you start working on yourself. अपने आप बूस्ट आता है इस चीज का, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ अवेयरनेस भी आई अपनी बॉडी के बारे में। Exactly, मतलब you get to understand कि भाई ये जितना तू अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा है ना, जितना अपने आप को गिरा रहा है, इतनी कोई जरूरत है नहीं। मतलब लाइफ इज नॉट दैट टफ जितनी तू अपने माइंड में उसे परसीव कर रहा है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, चलता रहा। देन आई थॉट कि यू नो व्हाई नॉट गिव स्पोर्ट्स आल्सो अ शॉट, and I got into sports, मतलब जो sports हाथ लग जाए, and at that time I used to very good at swimming. So I started off with swimming. I thought कि I should go at a bigger level. Then I applied for district. I won gold at district as well. Then I was sent to state level from my district attorneys over here, and then I won gold at state level as well. Then I was sent to for nationals. Nationals also I couldn't qualify for the time, but that was a very big level of boost for me, because वो somehow मेरे को उसने मेरे को वो दिया कि यार अगर if not studies ना, I have sports in my life. वो प्लेटफॉर्म मिल गया ना एक। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ कर जाऊंगा अपनी लाइफ में। तो वहाँ से ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होना शुरू हुआ। फिर आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन माई स्कूल इवेंट्स एज वेल फॉर द स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। आई स्टार्टेड विनिंग मेडल्स। People, then my teachers and everyone, they started praising me and telling me good things about myself, and मेरे को स्टेज पे मेडल मिलने शुरू हुए, which somehow boosted my confidence all over again. Won a relay. Exactly. Annual heats पे. Exactly. Then dance team में ज्वाइन किया मेरे साथ। Exactly. उस टाइम पे था कि grab करो यार opportunity, जो है, जहाँ से आ रहा है। हाँ, और this was the same guy who used to run away from everything. And this is the same guy who's grabbing every opportunity that is coming their way. And somehow ना मेरी studies भी better हो गई थोड़ी सी। I won't say good, but better हो गई। I was a stage जहाँ पे was barely मेरे लिए मुश्किल हो जाता था पास हो जाना, वहाँ पे मेरे लिए ना automatically मेरे को somehow balanced पे आ गया। Right. तो everything started going good. मेरा people started to know me. लोगों को पता चलने लगा कि स्कूल में अक्सांश भी कोई एक लड़का है, वरना पहले तो एक अननोन आइडेंटिटी कि हाँ भी है नहीं है। तो लोगों को जब पता चलना शुरू हुआ तो आपको एक ऐसी किक देता है ना जो कि आप बता नहीं सकते, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसके अंदर हो ना, उस इंसान के अंदर, तभी आप समझ पाओगे, वरना आप
के लिए लगेगा कि ठीक है यार अच्छी बात है, बट इतना भी क्या हो गया, जब तक तुम्हारे शूज में स्टेप ही नहीं करेगा तब तक क्या एग्जैक्टली तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, उसके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। माइनस टू प्लस में आने वाली बात। हाँ, एंड फिर मेरा स्कूलिंग वगैरह ऑलमोस्ट एंड पे आ गया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। फिर साथ में फेल हो गए हम, फिर साथ में हम पास भी हो गए, सेम मार्क्स से, एग्जैक्ट परसेंटेज सेम। एंड फिर मेरे को 11th-12th में मेरे फ्रेंड्स भी बनने लगे, यू बिकेम माय फ्रेंड, एंड हमारी फ्रेंडशिप स्लोली बिल्ड होनी शुरू हुई। एंड आई हैव सीन यू डूइंग सम सैक्रिफाइसेस फॉर मी, एंड you know being there for me when times were tough, and there were not people with me but you stood by me. So and एक अच्छा सर्कल बनना शुरू हो गया मेरा overall. Then my 12th came to an end, did well in my 12th, you know. उसके बाद मेरा 12th खत्म होने के बाद I applied for my graduation in Amity. I did my bachelor's in journalism and mass communication. वहाँ तुमने मॉडलिंग करी? हाँ, then I applied for my modeling group in my society. You know, there was a society by the name of I think उसका नेम भी मैं भूल गया हूँ, बट वो हमारी मॉडलिंग सोसाइटी की ग्रुप होता था पूरा हमारे बैच में, तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट। वहाँ पे भी पीपल अपलॉडेड, पीपल सपोर्टेड, सो मतलब एक तरीके के बाद एक चीज़ बढ़ती चली गई वो, और रिपल इफेक्ट आ गया ना एक अच्छी चीज़ों का। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो अब मेहनत चल रही थी ना पिछले 3-4 साल से अपने ऊपर, अब जाके वो पे ऑफ कर रही है ना। बट स्टिल आई वुड कम बैक टू दिस पॉइंट कि मतलब वो 3-4 साल करा है, उससे पहले देयर वाज नो कि कोई प्रेज कर रहा है कि अरे भाई तू तो मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, या तेरे पीछे कोई खड़ा है, नहीं, वो 3-4 साल वाज बाय योरसेल्फ। तो यू नो किड्स दीस डेज दे से कि यू नो दे वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दे वांट इंस्टेंट सपोर्ट। नहीं होगा यार, इंस्टेंट सक्सेस तो कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज दैट्स नॉट रियल लाइफ। Exactly. हो ही नहीं सकता। मतलब ठीक है 1000 in 1 केसेस हो जाएगा, कोई एक लकी बंदा निकलेगा जिसको इंस्टेंट मिल गई सक्सेस, है ना। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें वॉल एक क्रिएट करनी है ना अपने लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना है, तो टाइम लगाना ही पड़ेगा। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पुष्कर और मेरा जो ये पॉडकास्ट है, कि सब लोग सक्सेसफुल लोग हैं जो उनको देखते हैं कि वो, अब जैसे शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद कितनी भी बातें कर लो, कुछ भी बोल लो, सब मान लेंगे, राइट। पैसे कमा लो पहले, उसके बाद अच्छी बातें कर लेना। बट अब मेरा मानना है कि अगर हम, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग उस प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपिंग प्रोसेस में, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनसे बात करना चाहिए, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो ऐड ऑन होता है। बट जो डेवलपिंग स्टेज में है, जो अभी प्रोग्रेस में है कुछ करने की, या कुछ कर रहे हैं, किसी बैड फेज से बाहर आ रहे हैं, जैसे हमारा लास्ट मेंटल हेल्थ वाला पॉडकास्ट था, या फिर अभी अक्षांश वाला जो फिटनेस के ऊपर है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, अभी भी जर्नी है, क्योंकि एंड नहीं आया है। सक्सेस के बाद भी एंड, अगर जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो या फिर तुमने अचीव कर लिया, उस दिन तुम्हारी सक्सेस वहीं रुक जाएगी, या फिर तुम्हारी लाइफ का जो गोल है सब वही स्टैग्नेंट हो जाएगा काफ़ी। तो हम वही चाहते हैं। फिर कॉलेज में आया, अपनी कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया, डिड वेल ओवर देयर एज वेल। अपनी मॉडलिंग सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी अच्छा चलता रहा, है ना। बट आई नेवर लेफ्ट एक्सरसाइज फॉर मी ना। आफ्टर अ वाइल, पोस्ट 4-5 years ना, एक चीज़ बन गई कि इट वॉज अ थिंग फॉर मी वेयर आई कैन बी मी, या फिर escape from, exactly, where I can be me. Well, I don't have to answer anyone, I don't have to take judgments, I don't care what other people are thinking, I don't care if they're people, it's just me and me. कोई जजमेंट नहीं, कोई कुछ सुनना नहीं, कुछ करना नहीं, देखना नहीं, बस फोकस ऑन एक। Exactly, मतलब it's just me and my weights. Exactly. And I don't have to answer anyone, I don't care if anyone is answering about me, है ना। if anyone is making judgments about me, it's all negligible to me. अब इसमें भी एक पॉइंट है जो तुमने बताया, तो एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्षांश ने बोला कि, मैं से पूछ रहा कि रोज़ वर्कआउट करना कैसा फील होता है, कि रोज़ इतना मोटिवेटेड रहता है कि नहीं रहता है, कि लोग बोलते हैं कि यार मैं आज नहीं कर पाया, मैं कल नहीं कर पाया, तो कि मेरे को रोज़ मज़ा आ रहा है, रोज़ किसी को मज़ा नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 5:30 उठना, या फिर ये भी उठा है 5:30, क्योंकि जब कॉलेज था दूर जाना होता है, या फिर ऑफिस है दूर जाना है, कुछ भी करना है, तो 5:30 अगर डिटर्मिंड हो कुछ भी करना है, तो तुम्हें जिम जाने की जरूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरे को अक्षांश ने आज तक समझाया है कि जिम जाना इज़ नॉट नेसेसरी, तुम अपने आप भी कुछ कर सकते हो, और तुम्हें वेट्स भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना बॉडी वेट काफ़ी है। तो और रोज़ मोटिवेटेड नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। I mean, पता है, people say कि you know if you follow your passion, you're going to be motivated every day, you're going to feel this is the best day of it. It's all a hoax. मिथ है भाई ये सारी चीजें। तुम कर ही रहे हो, अब रोज कर रहे हो तुम, जॉब छोड़ के अब फिटनेस में प्रॉपर फुल टाइम घुसे हो। एग्जैक्टली, आई मीन मतलब यार दिस इज ऑल ना, ये सारी बातें बहुत
क्लीशे बातें होती हैं which looks good on आपकी बुक्स में और मोटिवेशनल कोट्स में। हाँ मतलब it doesn't apply in your real life because I mean again even if you take let's leave rest us of all out of it and let's take Usain Bolt. अगर हम उज़ैन बोल्ट के पास भी जाएंगे ना, if we interview them and interview him, ask him कि what is that कि which keeps you going every day in your training, वो भी ये बोलेगा कि it's all well bro, it's not that कि I like my everyday training, he also doesn't like it. अगर उसको भी आप बोलोगे ना कि after 6 days of training this 1 day of relaxation, he will always incline towards 1 day of relaxation. ऑब्वियसली वही मोनोटोनस रूटीन, वही रनिंग है, उसको पता है वो प्रोसेस क्या है, वो जीत चुका है, वो ऑलरेडी इतना जीत चुका है, बट उसको वो जो गोल्ड मेडल मिलने के टाइम पे वो जो फील होती है, Exactly. लिए जो उसको प्रोसेस में एंजॉय करना है और मेहनत करनी है, Exactly. वो इम्पोर्टेंट है। Because I was reading somewhere Usain Bolt has actually run only I guess approx more than just not 7 to 8 minutes in his entire career. एग्जैक्टली हाँ। Whether it be 100-meter dash or 400-meter runs, anything. But that guy actually practiced for more than 20 years for that 9-minute run. फॉर दैट 9 seconds 9.58, जब वो 2012 में फर्स्ट टाइम हुआ था कि 9.58 करा, उसके बाद उसने सेकंड टाइम में रिकॉर्ड तोड़ा। Exactly. 9.58 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो इंसान। Exactly. And उस 9 minute के लिए रन के लिए everyone will praise you for that 9 minutes, but they won't see those 20 years that you have been training. And everyone will think कि यार ये तो famous है, ये तो enjoy करता होगा, नहीं, इतने trainers हैं इसके सर पे। भाई आप जितने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना, उतनी difficult हो जाती है आपकी लाइफ, उतना मेंटेन करना है। बिकॉज आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड मैच करना ही पड़ेगा। Exactly. लाइक लोग बोलते हैं कि लोग बॉलीवुड में है, एक सर्टेन लेवल पे आ गए हैं, उनकी एक लाइफ है, मजे करते होंगे, एंजॉय करते होंगे। दैट्स नॉट इट। आई नो दे गोना एंजॉय, आई नो दे पार्टी हार्ड, आई नो दे हैव मोर लग्जूरियस लाइफ देन अस बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। हाँ तो वो मोमेंट्स आएंगे ना, उस मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए तो इतना सारा वो जो मेहनत है, एग्जैक्टली हार्ड वर्क है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उतनी ही लाइफ उनकी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, बहुत, बिकॉज दे हैव टू मैच अप अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर टाइम अगर आपके सामने आए, स्क्रीन पे आए, तो एक सर्टेन लेवल दिखना चाहिए। उसके लिए वो जितना अपनी बैंड बजा रहे हैं वो कोई भी नहीं देखना चाहता। छोले भटूरे, रबड़ी, ये सब छोड़ना फिटनेस वालों के लिए बहुत टफ होता है। सबसे टफ चीज़ ही डाइट है, क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज करता रहता हूँ, पर मेरे से कभी ये डाइट तो मतलब खाना छोड़ना तो दूर की बात है, क्लीन खाना खाना ही बड़ी मुश्किल बात है। कि हफ्ते में एक दिन चीट डे इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, हफ्ते में एक दिन क्लीन डे होता है मेरा। एग्जैक्टली। Is it 90% diet or? नहीं ब्रदर, आई वुड सजेस्ट इट्स नेवर बीन 90 or 10 or 80-20 or 50-50. It has always been 100%, 100%. It's 100% diet, 100% your workout. It's never been 50-50. Sometimes people say कि आप वर्कआउट जिम में करो but your body is actually made in kitchen. But that's not true. मतलब if मैं आपकी डाइट बहुत क्लीन कर दूंगा, I will give you the proper nutrition, but I won't tell you to work out, then also आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। Yeah, you might डिजायर्ड बॉडी कभी नहीं बनेगी। you might get lean and stuff, but you won't call yourself fit. मतलब supposedly अगर मैं आपको बोलूँ कि come let's play something, तो आपकी बैंड बच जाएगी, because आप lean इसलिए क्योंकि आप खाना सही खा रहे हैं। But अगर आप मेहनत अपने ऊपर फिजिकली नहीं करेंगे, then also it's just halfway there. Exactly. जब तक बॉडी पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कोई क्योंकि कुछ नहीं लग रहा है, तो एग्जैक्टली यही सब होता तो हर कोई अपने ऊपर सिर्फ खाने पे ध्यान देता। Exactly. हर कोई अपने सिर्फ इस चीज पे ध्यान देता है कि खाना खा लेते हैं ढंग से, रेस तो हम जीत ही जाएंगे या फाइट तो हम जीत ही जाएंगे। तो इट्स नेवर बीन 50-50 और 80-20, इट्स ऑलवेज बीन अराउंड 100%, एंड दैट्स द होल मोटिव यार। मतलब अगर इफ यू कांट गिव योर 100% ना, देन वो जो 1% जो स्वीटनेस मिलती है ना आफ्टर विनिंग और समथिंग, यू कैन नेवर एवर एक्चुअली रिलिश इट। अगर तुमने सपोजिटली किसी चीज में 50% दिया भी है ना, एंड बाय मिस्टेक तुम जीत भी गए, या लकीली तुम जीत भी गए, तुम खुद नहीं रिलिश कर पाओगे उस चीज को। तुम्हारे दिमाग में पता है क्या चलता रहेगा, अरे जीत तो गया पर इतनी मेहनत तो की नहीं थी मैंने, ये चीज। और अगर तुमने अपनी बैंड बजा दी थी ना उस चीज में, तो अगर तुम जीत गए, ओहो उसका जो सेटिस्फैक्शन तुम है, ऐसे डंकी की चोट पे बोल सकते हो कि ये तो पूरे फुल ऑन कॉन्फिडेंस, अरे करा है मैंने, करा है, आई हैव वॉन। उसका हाई अलग लेवल होता है। नो मैरिजुआना, नो हैश, नो एनी, नथिंग कैन मैच इट, drug substance can match it. It's altogether a different level of high. And this people say कि I have this famous quote or I believe in this thing कि हमें ऐसा करना चाहिए अपनी लाइफ में, इस तरह से लीड करना चाहिए। I have very two important people जिनकी बातें I really respect and understand. Like Arnold Schwarzenegger has been a very big of my inspiration. He always says कि ignore the naysayers, जो आपके बारे में नेगेटिव बोले। But on the other hand, the other person, he's a stand-up comedian, Zakir Khan, and I really admire what he says. He also says कि
अगर तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव बोले ना तो रुको और सुनो उनकी बात. अब इफ मैं उसकी बात भी सुनूं आर्नोल्ड की, ही इज आल्सो राइट. इफ आई अंडरस्टैंड जाकिर खान एज वेल, ही इज आल्सो राइट. पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है बेसिकली Exactly. देखने का, लेकिन गोल एक ही है जाने का. एग्जैक्टली. तो बट आई वुड सजेस्ट कि पता है, यू डोंट हैव टू इवन लिसन टू आर्नोल्ड, यू डोंट हैव टू इवन लिसन टू जाकिर खान. अपना वे जस्ट लिसन टू योरसेल्फ. एग्जैक्टली. आई मीन अगर तुमने उसके बेसिस पे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर भी दी, व्हाट्स द यूज? You will never have your unique personality. You will never let the real Axansh come out or real Jainendra come out, real Pushkar come out, because I'm a totally different person. My way of living is completely different. Maybe I am a person जिसके लिए दोनों चीज़ें important है. कभी कभार इग्नोर भी करना, कभी कभार उन पर ध्यान भी देना. तो अगर तुम सीखना चाहते हो ना, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि चाहे तुम्हारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या बुरा, दे ऑलवेज टेल यू द बेस्ट थिंग, ऑलवेज. क्योंकि और कोई कुछ भी बता देना, दे विल बी अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू देम, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि इट इज अप्लाइड ऑन योर लाइफ एज वेल. सो आई हैव जस्ट फॉलोड दिस इंट्यूशन ऑफ फॉलोइंग माई एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट आई कैन. एंड ऐसा भी होता है बहुत बार गलती, आई मेक इट रिपीटेटिव, बट स्टिल मैं हमेशा लर्न हमेशा अपने एक्सपीरियंस से करता रहता हूँ. और ऑडियंस के लिए तुम्हारे लिए कोई टिप्स है, लाइक लेट्स से जैसे तुम मुझे देते हो कि तुझे जो खाना है खा, तुझे जहाँ का खाना है खा, नॉट कि खाना छोड़ दे या क्लीन डाइट ले ले. ये जिससे कि हफ्ते में एक बार कर दे अपने, अगर जंक को कंट्रोल ही करना है इन केस तेरे को, तो दैट वुड बी गुड इनफ फॉर यू. तो इसमें तुम्हें पता है, क्योंकि मैं 7-8 साल से हम साथ में, तो तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी टाइप की तुमने देखा हुआ है. तो आई गेस सबको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चलना चाहिए. तो जो बॉडी टाइप तुम्हारा कहे कि ये प्रेफर कर रहे हो तुम कि खाना छोड़ना, तुम्हारे लिए अगर क्लीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तुम्हारी डिजायर्ड बॉडी आएगी, तो तुम वो करो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम खाना भी खा सकते हो बाहर का और तुम एक्सरसाइज करके उसको निचोड़ भी सकते हो उतना ही, उसे बर्न आउट कर सकते हो, देन यू कैन गेट इन अ गुड शेप. दैट इज परफेक्टली ऑलराइट. बिल्कुल करो. हर एक का अलग पाथ और अलग वे और अलग प्रोसेस होता है. तो तुम्हारे पास ऐसे पजल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ब्लॉक्स हैं, तुम ब्लॉक्स को कैसे भी लगा सकते हो और अपना डिजायर्ड रिजल्ट फॉर्म कर सकते हो. एग्जैक्टली. मतलब यहाँ पे ना लोग एक्चुअली बहुत मिक्सअप हो जाते हैं, बिकॉज दे नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. मे बी ऐसा हो सकता है कि अ गाय वांट्स अ गुड फिजिक, बट उसे स्ट्रेंथ भी चाहिए. तो वो उसी चीज में ना कंफ्यूज होता रह जाता है कि मैं फिजिक के पीछे जाऊं या स्ट्रेंथ और एक गुड पावर के पीछे जाऊं. एंड इसी चीजों में मिक्सअप में ना लोग उसी एक लूप में अटक जाते हैं. So I want people to understand, and even the millennials who are coming up, who are getting into this side, who are getting into fitness, I want to tell them कि understand yourself, understand your body type, understand your goal. अगर if your goal, your body type, your decisions related to your body are going to be influenced by other people around you, trust me, इतनी गंदे लूप में फंस जाओगे, you won't even understand कि तुम्हारे साथ हो क्या गया. Because ये एक बहुत डेलिकेट मैटर है. इट्स योर बॉडी, यू हैव टू लिव विद इट. तुम क्या डाल रहे हो, क्या कर रहे हो उसके साथ, ऑल रिपरकशंस तुम्हारे ऊपर आएंगे. एंड आपकी बॉडी ऐसी नहीं बनी कि आप तोड़ दो, मरोड़ दो और देन इट्स बी लाइक अरे यार शिट, ये तो गलती कर दी, चलो दोबारा आ जाते हैं. नहीं, इसमें गलतियां कुछ ऐसे इरिवर्सिबल हो जाती है जहाँ पे यू जस्ट हैव टू लिव विद देम. तो नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है. एग्जैक्टली. मतलब पीपल कम एंड से कि यार कौन सा प्रोटीन लूँ, क्या करो. And I tell them, stay natural, brother. People just stay natural. Why do you even have to depend on supplements for anything? I mean, yeah, if you want to be an bodybuilding athlete or you want to be a sports athlete, then it's okay. और कॉम्पिटिटिव होना है. Exactly. And you have to go ahead and be at a competitive stage. Then go ahead. It's a very good thing for you. Go ahead and buy any kind of supplement that is suiting your body. Buy any kind of performance enhancing drugs that is supporting your body. या तुम्हें मॉडलिंग नहीं जाना है, तुम्हें बॉडी शेप ऐसी रखनी है all year round. Consult your doctor or whomsoever you want to, and then go ahead and buy that. Even before taking the protein, like प्रोटीन भी लेना है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. Yeah. Even if you're taking protein, you should consult doctor, but people generally don't. They're like कि कोई भी प्रोटीन चली तो जाए. 80% people don't. Maybe more. Exactly. They're like कि चल जाएगा यार, प्रोटीन तो है, क्या ही हो जाएगा बॉडी में. But they need to understand कि भाई you're taking a supplement right now. अगर if you actually professional and knowledgeable enough ना, you need to understand कि ये एक तरीके से तुम जैसे दवाई लेते हैं ना,
तो दवाई जैसे क्रोसिन है, सॉरी डिस्प्रिन इज अ वेरी माइनर दवाई. इट हैज मतलब इतना छोटा सा होता है कि आपके बस सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको मिटाने के लिए बहुत ही माइल्ड डोज ऑफ मेडिसिन होती है, बट स्टिल यू कंसल्टेड फ्रॉम अ डॉक्टर. प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है आपको. इसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो ना, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बट पीपल डोंट. पीपल थिंक कि प्रोटीन ही तो है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट से ही तो बना है. और ये जिम ट्रेनर्स काफ़ी जो नॉलेजेबल मे बी प्रॉब्लली हो या ना हो, आई डोंट नो, कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं. एग्जैक्टली. और उनके पीयर प्रेशर में भी होते हैं कई लोग जिम लोगों की, उनको लगता है यार इनकी तो बॉडी है जिम वालों की और इन्होंने तो बना लिया. अब उनको क्या पता उसमें उसको स्टोन्स हो गए हैं या फिर उसको पेन हो रहा है, कितना किडनी में या लिवर में इशू आ रखे हों या कुछ भी बॉडी में इशू हो उसकी, वो थोड़ी ना बताएगा कोई. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ब्रदर कि आपकी किडनी फेलियर हो जाए, आपका हार्ट फेलियर हो जाए. इतने एग्जांपल्स हैं हमारे पास इस इंडस्ट्री में जिनके साथ ये प्रॉब्लम सफ़र कर चुके हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु डोंट इवन वांट टू कम्पीट, हु वांट टू बी ऑन देयर डेली बेसिक लाइफस्टाइल. फिटनेस मेंटेन, अपनी अच्छी फिजिक बनानी है, बस उसके लिए दे वांट टू कंज्यूम सप्लीमेंट्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, बट यू शुडंट. अब जैसे प्री वर्कआउट हो गया BCAA, ठीक है, प्रोटीन और ये सब चीज़ें जो लोग पूरा ऐसे पैक ले आते हैं विदाउट एनी नॉलेज, और सिर्फ नेट पे पढ़ के नॉलेज नहीं आती है. इसने पूरा 1.5 साल लगाया सर्टिफाइड होने के लिए फिटनेस और न्यूट्रिशन में, सो उसका कुछ वैल्यू होता है. Exactly. I mean, पता है people now, it's been I guess more than 8 years I've been working out continuously. I mean, there's never been a year where I've been like कि ठीक है यार अब ब्रेक ले लेते हैं. It's been years I've been working out. Let's take a good long break. और तुमने अभी तक प्रोटीन नहीं लिया है. And I've never touched protein. और डोले दिखाइयो. ठीक है, फिटनेस और एब्स भाई के पूरे एकदम टच है. So there's never been a day I've touched any kind of protein supplement, any kind of BCAA, glutamine, any kind of pre-workout, any performance enhancing drugs. It's always been about hard work, dedication, consistency, eating the right amount of nutrition, and having good cooked meal from homes. है ना? इसको नोट करके रखना, बिकॉज ये एक्चुअल वाले सप्लीमेंट्स हैं. ये अगर सप्लीमेंट्स को ऐसे केमिकल एक्स के साथ मिक्स करके तुम डालोगे तो तुम्हारे पास बॉडी आएगी, ना कि बाकी प्रोटीन BCAA और प्री वर्कआउट. क्योंकि जितना तुम ये डालोगे इट्स जस्ट लाइक सिगरेट्स एंड ड्रग्स, कि तुम्हारी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और बिना प्री वर्कआउट के तुम जिम ही नहीं कर पाओगे, तुम नॉर्मल वर्कआउट या रन पे नहीं जा पाओगे. और किसी दिन तुम्हें एक्चुअल में बॉडी की ज़रूरत पड़ गई तो वो बॉडी तुम्हारी नेचुरल वे में रश नहीं दे पाएगी, तुम्हें प्री वर्कआउट लेके ही भागना पड़ेगा अगर तुम्हारे पीछे सांड बढ़ गया. एग्जैक्टली. ये उस तरह का है जैसे लोग पार्टी में कहते हैं ना कि यार बिना दारू पिए मेरे को हाई नहीं आता, आई कांट एंजॉय द पार्टी. इट्स सिमिलर टू दैट. मतलब यू हैव टू डिपेंड ऑन समथिंग ना टू गेट योर लेवल ऑफ हाई. मतलब या हैप्पीनेस के लिए भी. या देन आई मीन देयर समथिंग रॉन्ग. हाँ, तो इंटरनली नहीं है वो. हाँ, देन देयर समथिंग रॉन्ग. यू नीड टू चेक योरसेल्फ. यू नो, सोशल मीडिया इज नॉट रॉन्ग. Depending on social media is wrong. Alcohol or any kind of substances is not wrong. Depending on that for your happiness or high is wrong. Any kind of supplement when it comes to nutrition or anything is not wrong. But depending on that for your maintenance or anything, that is wrong. So, and people come and ask me कि how do you maintain such a good physique? You don't take any kind of supplements. ये वो. Some people don't even believe that कि तुम. हाँ, some people say कि नहीं ऐसे नहीं, ये लेता है छुपा के रखता है कहीं. छुपा के रखता है, बस ऐसे ही बोल रहा है ना. घर पे लेता होगा, ये लेता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कर ले, इससे आपसे परफॉर्मेंस दे दे और इसकी बॉडी सिर्फ नेचुरल डाइट पे चल जाए. हो ही नहीं सकता. तो नेचुरल डाइट का यही फंडा है बेसिकली. मैंने ये भी कहीं पढ़ा और सुना है कि जस्ट लाइक योगा काफ़ी स्लो प्रोसेस है बॉडी को समझने और ब्रीदिंग को समझने के लिए, माइंड को समझने के लिए. योगा काफ़ी स्लो प्रोसेस है. तो जितना स्लोली योगा से फिटनेस और हेल्थ आता है उतना ही स्लोली जाता भी है. एग्जैक्टली. एंड लाइक आई टेल देम कि पता है व्हाट दे आर सीइंग राइट नाउ इज ना कि डाउन द लाइन पोस्ट 7-8 years आफ्टर बाय दे आर सीइंग मी नाउ. है ना, दे सी कि आई कैन डू calisthenics, they can see I can do CrossFit movements, they can see I can do good body weight movements, they see lifting me good weights, but they don't see those starting 4-5 initial years जहाँ पे I built my base. Exactly. जहाँ पे मतलब I was a guy who used to be consistent, where I've done 1,000 and more and more push-ups. I've done 1,000 pull-ups. They don't see that. But people see it's like तुम्हारा बना है brick by brick. बॉडी अगर माने तो ठीक है, ब्रिक बाय ब्रिक ऐसे बिल्डअप हुआ है. लोग चाहते हैं 3D प्रिंटिंग. एग्जैक्टली. ऐसे ठक 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 और ऐसे मसल जुड़ते जाए. तुम्हारा है लेयर बाय लेयर मसल बना है, तो वो 8 साल लगे हैं इसको इतना होने में, ना कि प्रोटीन और ये सब डाल के ओके पुफ एंड यू गेट अ मसल. एग्जैक्टली. तो आई मीन
I mean, just one thing which people in these era na, that they can really really hold on to is patience. I mean, patience and consistency. One thing which is lacking in these times is because everyone wants instant gratification. Everyone wants this एकदम से हाई मिल जाए यार, हर चीज़ का ना इंस्टेंट आंसर मिल जाए, हर चीज़ का इंस्टेंट जवाब मिल जाए, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. वी लिव इन सच अ वर्ल्ड वेयर फीड वही करा जा रहा है ना, वही एग्जैक्टली हर चीज़ के लिए आपके पास इंस्टेंट करने के लिए है. आपको डेट पे जाना है, यू हैव टिंडर, बम्बल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. यू वांट टू ऑर्डर समथिंग, देयर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जोमेटो, स्विगी, हर चीज़ के लिए आपके पास इंस्टेंट जवाब है. आपको कहीं क्या कहते हैं अपनी बॉडी बनानी है, आपके पास परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है, इजीली अवेलेबल चीज़ है. रिलेशनशिप मेंटेन करना है, दोस्तों से मिलना है, जूम कॉल है, चैट है, बट वो एक्चुअल नेचुरल वे नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है. मतलब दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बट जो आपकी डिपेंडेंसी इस चीज़ पे बढ़ती चली जा रही है ना, विच इज़ नॉट गुड. आई मीन देयर विल कम अ टाइम व्हेन यार यू वोंट इवन हैव गुड रिलेशंस विद योर पेरेंट्स, एंड दैट इज अ वेरी सैड टाइम. अगर सिर्फ कॉल पे ही रखना है तो हाँ, अगर उस पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, मिल नहीं रहे हो, टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, बहुत एक सही में पोस्ट 25 ईयर्स और पोस्ट 20 ईयर्स ना एक इतना सैड टाइम आ जाएगा अगर इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस पाथ ओनली, कि people will be so isolated they wouldn't even want to meet each other. They'll be like कि phone पे बात हो गई ना, it's enough. हाँ, wouldn't it? And it's a very sad time. I mean, if being lonely makes you with a good high, I mean, it's very sad. I mean, we can't even talk about it. It's very sad actually to get a high from being lonely. Because हमारे ग्रुप में अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरा मिलना पसंद नहीं है. हमारे ग्रुप में इंट्रोवर्ट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं. Exactly. तो मिक्स भी हैं. Exactly. हाँ, तो सबका अपना अपना वे है, लेकिन वही वे अंडरस्टैंड करना होता है अपने फ्रेंड का हमें. Exactly. यार समटाइम्स क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके रिलेशन में दोनों में से कोई एक एफर्ट कम लगा रहा है ना, तो आप लगाओ यार ज़्यादा. Exactly. डोंट फील दैट ईगो एंड डोंट कीप इट टू योरसेल्फ. लगाओ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा. ये नहीं कि गिव अप कर दो. मे बी विद टाइम द अदर पार्टनर विल कम बैक टू यू एंड वो भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करे, बट अभी फॉर द टाइमिंग लगाओ वो एफर्ट. बिकॉज अगर तुम्हारी तरह ना, अगर उसकी तरह अगर तुम भी ये सोच लोगे कि मैं भी एफर्ट नहीं लगाता, नहीं करता, तो कुछ भी नहीं रहेगा. कुछ नहीं रहेगा. यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, कुछ नहीं बचेगा यार. दोनों साइड से कुछ नहीं रहेगा फिर. एग्जैक्टली. बस आप चलते चले जाओगे एक फिर तुम्हें कोई और नया मिलेगा. एग्जैक्टली. आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वही चलता रहेगा. एग्जैक्टली. तो दिस इज द होल मोटिव कि यार दिस इज वन थिंग दैट हैव एक्चुअली फिटनेस टोल्ड मी एंड टॉट मी ओवर द इयर्स कि जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंसी पे एक जो रोगन का भी पॉडकास्ट है, एक MMA में सुपरस्टार के साथ, काफ़ी बढ़िया एथलीट है वो, तो उसने और जो रोगन और दोनों ने बात करी है इसी चीज़ पे पूरा लाइक एन आवर अराउंड, कि रोज़ इंटेंसिटी हिट करना इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी ऑल्सो. रोज़ कंसिस्टेंट होना इज़ गुड. क्योंकि अगर अक्षांश जा रहा है, वो आज उसका 4 दिन का रूटीन है, वो एक दिन में 20 मारता है, ठीक है, पुशअप्स. जस्ट एक एग्जांपल कि पुशअप्स 20 मार रहा है और उसका एक दिन छोड़ के अगले दिन 20 पुशअप मार रहा है, एक दिन छोड़ के अगले दिन 20 पुशअप मार रहा है, तो तुम्हारे हो गए 60. बट अगर मैं 7 डेज सिर्फ 10 भी मार रहा हूँ और अपनी सबसे हाई हिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने मसल को ऐसे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ कि इतना लेथार्जिक और इतना क्रैम्प्ड हो मेरी बॉडी कि मैं अगले दिन उठ ना पाऊँ, 20 करने के बाद मेरा वो हाल हो जाएगा. तो मैं रोज़ 10-10 करूँगा और एट द एंड ऑफ द वीक मैंने अक्षांश से 10 ज़्यादा करे होंगे. एग्जैक्टली. तो कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करती है. और लोग कंसिस्टेंसी को मैच कर देते हैं इंटेंसिटी से. लोग क्या होता है, जब उन्हें लगता है ना कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, अपनी थोड़ा बॉडी पे ध्यान देना है, तो ऑल पम्प्ड अप, हाई मोटिवेटेड, पूरा पुश कर देते हैं. फिर वो कम टू द जिम, 1 महीना रज के मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगा देते हैं, जो न्यू ईयर पे होता है, और 1 महीने बाद तो प्लेटो हिट कर देते हैं. एग्जैक्टली. एज अ नॉर्मल ह्यूमन वुड वो प्लेटो हिट कर देते हैं, देने लेके नहीं यार छोड़, मुझे तो देखनी भी नहीं है इसकी शक्ल. एंड उसमें यही लॉस होता है कि जो इतना सालों में बना है ना, वो 1 महीने में कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं. मतलब आपके बॉडी को भी जस्ट पता चलना शुरू हुआ है कि भाई एक्सरसाइज क्या होती है, कि अच्छा अब इस पे अडेप्ट करना है, इसको अगले दिन भी सेम मसल में एनर्जी देनी है. एग्जैक्टली. तो आपने बेसिकली बस 1 महीने ना बस जस्ट वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने जब तक तो अपनी बॉडी को उस पॉइंट पे लाया उतने में तो आप आगे बढ़ गए. एग्जैक्टली. तो न्यू ईयर का वेट मत करना. यस. अगर स्टार्ट भी करना है किसी को तो आज से करो. स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग, वॉक करो, वॉक से रनिंग पे आओ, रनिंग से और जब फुल बॉडी एक्सरसाइज और कैलिस्थेनिक्स में घुस जाओ और अपनी बॉडी को समझ लो, इतने डिटर्मिन्ड हो कि खुद कर सको आधा घंटा वर्कआउट रोज, तो जिम जाने की सोचना. एग्जैक्ट. और पता है, आई वुड जस्ट गिव वन टिप टू द ऑडियंस इज दैट कि यू नो योरसेल्फ, अंडरस्टैंड. इफ यू वांट टू बी एथलीट, मतलब गो हार्ड, go train hard. If you want to be just having a good nice physique, good power,
train well, go slow, understand your pressure, understand your consistency, and hit gym, you know, at least 5 times a week, है ना. And if your goal is fitness, कि भाई basic fitness maintained रहे, which is I guess the 80% population in this whole world. They want just fitness. Exactly. Not everyone wants to be an athlete. Everyone wants to be a, you know, bodybuilding champ. No, majority of the people, they have just simple goals. Ki, you know, we want to be fit. So even 20 to 30 minutes of daily workout is very good enough. इसमें इसका और मेरा एग्जांपल ले लेते हैं. ये ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर. कहाँ पे ट्रेन करते हो? So I work with various branches, you know, various gyms. Like I work with boot camps. I work with, there's a gym called by the name of Bomiso Gym. I give some home trainings as well. I give some online trainings as well. So all mixing them up na. I've always told my clients कि अगर if your goal is fitness ना, don't pressurize yourself. Understand कि it will take time and you don't have to कि आज 1.5 hour ही workout करना है, उससे 1 minute भी कम is like too bad for me. No, 20 to 30 minutes is very good enough for you. Understand कि उस 20-30 मिनट में workout करो, daily करो, and you will be sorted for your अपनी life. बॉडी को एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स तो दो यार. चाहे वॉक ही करके आ जाओ, तुम्हारा कुछ मन नहीं है वॉक करके आओ एटलीस्ट, क्योंकि तुम सारा दिन बैठे रहते हो, तुम्हारे पॉस्चर खराब हो जाते हैं, शोल्डर्स आगे आ जाते हैं, नेक में पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Exactly. तो इसका है काम बॉडी बिल्डिंग. तो ये इतना हिट करता है इंटेंसिटी के साथ. मेरा काम है, मुझे खाना भी है, मुझे फिटनेस भी मेंटेन करनी है. तो मैं रोज़ जाता हूँ या फिर 5 दिन जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत लाइट वर्कआउट करके आता हूँ अपने हिसाब से. और मैं करता हूँ फुल बॉडी, जितना मेरे को इसने बताया आज तक कि फुल बॉडी करो, यू आर गुड टू गो. एग्जैक्टली. एंड पता है क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार फिटनेस, ओह शिट यार, वर्कआउट, डाइट, ओह बर्बाद होने वाले अब तो, मतलब कोई लाइफ नहीं बचेगी, अब तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा. ये दैट इज नॉट द ट्रुथ. आई मीन वो एक मिसकंसेप्शन था जो सालों पहले था. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. we have come into such a modern time. Things have advanced a lot. You need to understand कि अगर if you want to have good fitness ना, you can have a very good happy life where you can try out new stuff as well. Where you want to eat something of your taste, you can have that as well. Mix it up. हाँ, you don't have to restrict yourself कि भाई जिम मतलब अपने दिमाग में इतना वो मेंटल डिलेमा मत बनाओ कि यार लाइफ अगर फिटनेस की है तो ऐसी ही होती है, मतलब जिम जाना है, स्ट्रिक्ट खाना है, बॉइल्ड खाना खाना है ना, इतना क्लीन डाइट खानी नहीं कि प्रोटीन शेक पीने हैं तुम्हें सिर्फ हेल्दी खा के जाना है और सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठा के ही बॉडी बन पाएगी. स्पोर्ट्स खेल लो. एग्जैक्ट. आई माई सेल्फ हैव अ वेरी स्वीट टूथ यार. I mean, if there are chocolates or if any kind of sweets at home, I am a person, I'm going to hog on them. I don't restrict myself कि oh shit यार मैंने इतना खा लिया कैसे होगा, because I know next day I'm going to burn those calories out. Exactly. उतना ही फिर पुश कर दो अपनी बॉडी को अगर कर रही है. Exactly. I never restrict myself कि oh खाना shit खाते टाइम क्रेप मत करो उस चीज़ पे, ऐसे डिलेमा में मत अटक जाओ कि नो यार ये खा लिया तो ऐसा. कैलोरी काउंट कभी मत करो, क्योंकि जब हम दोनों खाना खाते हैं तो जिंदगी में कभी कैलोरी काउंट करी नहीं हमने. अगर जलेबी आई है तो उसके ऊपर ऐसे कटोरी भर के रबड़ी गिरेगी. Exactly. I mean, मतलब यार वरना फन क्या है यार, if you're just craving about what you're having right now ना, तो तुमने उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू मार दी. पर्पस डिफीट कर दिया ना मिठाई का. मीठे और उसको जो डिलाइट तुम्हें फील होगा, जो ब्लिस आएगा उससे. हाँ, you just killed it. It's like कि someone has put in some effort for you and तुम उसके मुंह पे ये बात बोल दो कि यार इतना तो तुझे करना ही है मेरे लिए, या फिर इतना कह के छोड़ दो कि अच्छा हाँ ठीक है ओके. हाँ, तो you actually made the other person felt कि यार the other person would feel कि यार मैंने किया ही क्यों इसके लिए. जब उसको यही सोचना था तो why did I took the first step. एक तुम मिठाई खाओ तो मिठाई तुम्हारे बारे में ऐसे सोचेगी अगर कैलोरी काउंट करोगे तो. So yeah, well, I mean you need to understand कि मतलब अगर यार if you're having something cheat meal or you having something junk, enjoy. Exactly, enjoy करो खाने को भी और enjoy करो अपने उस प्रोसेस और वर्कआउट को भी. Exactly, मतलब क्योंकि तुम्हारे पास ना अभी कोई ऑल्टरनेट नहीं है. अगर तुम वो जंक खा रहे हो या तो तुम छोड़ दो, मत खाओ. अगर तुम खा रहे हो तो उसे एंजॉय करो. हाँ, तो ये तो नहीं कर सकते कि जलेबी खाते हो डंबल मार लो. एग्जैक्टली, मतलब तुम वो खा भी रहे हो, अपना मन भी खराब कर रहे हो, तो क्यों ही खा रहे हो, मत खाओ. तो इट्स लाइक दैट. हाँ, तब उस टाइम पे ग्रे एरिया में मत अटको. एक साइड डिसाइड करके चलो, या तो है या फिर नहीं है. दैट इज इट. तो आज के लिए आई गेस इतना ही. आज का सिर्फ स्टोरी का समरी एक लाइन में, पेशेंस और कंसिस्टेंसी. चाहे तुम लाइफ में अभी माइनस पे स्टार्ट कर रहे हो, चाहे ज़ीरो पे स्टार्ट कर रहे हो, और चाहे तुम प्लस पे हो भी और तुम्हें लाइक और प्लस लगाने और गोल्ड लगाने अपने मेडल्स में और अपने नेक के अराउंड कुछ भी करना है, तो जो भी अवार्ड जीतने और जाना है सक्सेस पे, तो कंसिस्टेंट और पेशेंस इज़ द की.
राइट, एंड विल डू अनदर पॉडकास्ट ऑन फिटनेस एंड द बॉडी टाइप्स, राइट. उसमें अक्षांश काफ़ी टेक्निकल बातों पे बात कर लेंगे कि कैसे टाइप की फिटनेस, कैसे टाइप की एक्सरसाइज किस इंसान को कब करनी चाहिए, और जैसा रूटीन है उसके वे में, बिकॉज ये हर टाइप के इंसान को ट्रेन कर रहा है, राइट. और तो उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. ऑल राइट, थैंक यू सो मच.